हाय फोक्स, आई होप स्टडी के लिए रेडी हैं. As we will be starting English reader from today, so you have to go through chapter number 1, unit number 1, which is lore and literature. There are some pictures given in this chapter. You have to identify the characters from the famous folk tales and the stories, and you have to name them. First I'll be giving for you. It is Goldilocks and Three Bears. Second one is a very famous story. जूते की story है, you must be knowing it. Third, fourth, fifth and sixth, you have to identify yourself and write in the given columns. Now turn to page number 6, which is a poem. When we study a poem, actually we have to cater to the emotions of the writer, what he wants to say and what are his feeling and how we will convey his feeling, how he is conveying his feeling to us. Let me read the poem first to you. Chapter number 1, to any reader. ये किसके लिए है? किसी भी रीडर के लिए है जो इस कविता को पढ़ रहा है. रीडर कौन है? जो इस कविता को पढ़ रहा है. ये उस व्यक्ति के लिए है जो इस कविता को पढ़ रहा है, और वो है रीडर, और वो है हम, मैं, आप, और जो भी इस कविता को पढ़ रहा है. कविता शुरू करने से पहले पॉन्डर अपॉन, आपको ये नए वर्ड्स इसमें मिलेंगे, न्यू वर्ड्स. विंडोज ऑफ द बुक. सेकेंड इज इंटेंट, प्ले बिजनेस, ल्यूड, child of air and linger. Then we come to the wordpedia, because if we want to know a new word, we should know its meaning too. The meaning of windows of the book means book let us look through a different world. This means book can be a window to the knowledge. Second is intent, devotion. हम कितने आराम से, कितने ध्यान से किसी चीज को, डिवोशन मतलब जैसे हम ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, दैट इज डिवोशन. उस डिवोशन के साथ, शिद्दत के साथ हम किस तरह से अपनी चीजों को पढ़ते हैं. प्ले बिजनेस, कंटिन्यूअसली वर्क मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क कंटिन्यूअसली एट अ गिवन पेस. लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है. लिंगर, रिवील, रोम या फेल्ड. लिंगर का मतलब है यहाँ वहाँ घूमना, फालतू में यहाँ वहाँ घूमना, या किसी चीज को लिंगर ऑन करना बोलते हैं ना, कि ये काम नहीं करना चाहता, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा. दिस फीलिंग इज कॉल्ड लिंगर ऑन. नेक्स्ट इज हियर यू, गिव यू, रिस्पॉन्ड. हियर यू का मतलब आपने किसी को पुकारा, किसी का नाम पुकारा, एंड ही सेड यस, हाँ बोलो. मम्मा ने बोला Pratik, come here, and Pratik said yes mama, I am coming. This means he is hearing you, he is hearing his mother. Then lewd, be attractive to you. Lewd का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. Child of air, memory only. Child of air का मतलब है सिर्फ दिमाग में, ध्यान में मग्न रहना, सिर्फ अपने ध्यान में मग्न रहना. Let me read the poem for you. Poem to any reader. As from the house your mother sees you playing round the garden trees, so you may see if you will look through the windows of this book. Another child far, far away and in another garden play. But do you think you can call it all by knocking on the windows call? That child to hear you, he intent is all on his play business bent. He does not hear, he will not look, not yet be lured out of this book. For long ago, the truth to say, he has grown up and gone away, and it is but a child of air that lingers in the garden there. The writer of this poem is R.L. Stevenson. What he wants to convey is that the world of book is different from the our world. अगर हम किसी किताब को पढ़ने में इतने व्यस्त हैं, मग्न हैं, हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं. हमें नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें नहीं पता मेरी मम्मी मुझे बुला रही है या मेरे घर में क्या चल रहा है. मैं अपनी दुनिया में इतना मगन हूँ, अपनी पुस्तकों की दुनिया में, अपनी किताबी दुनिया में इतना मग्न हो गया हूँ कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है. Let me explain from the first line.
As from the house your mother sees you playing round the garden trees. देखिए यहाँ पर पिक्चर में बहुत क्लियर दिखाया गया है कि मदर अपने बच्चे को कहाँ पर देख रही है, वो गार्डन में बैठा हुआ बुक पढ़ रहा है. 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं. As from the house your mother sees, आपको क्या दिख रहा है कि माँ जो है अपने बच्चे को देख रही है. You playing round the garden trees, कि आप पेड़ों के इर्द गिर्द खेल रहे हैं. So you may see if you will through the windows of this book. लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं? आप अपनी किताब की दुनिया में बिल्कुल ही व्यस्त है. विंडो ऑफ द वर्ल्ड मीन्स किताबी दुनिया में एकदम से मस्त है, मसरूफ है. Another child far far away and in the another garden play. एक दूर और गार्डन में कोई बच्चा खेल रहा है जो आपसे बहुत दूर है. बट क्या आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं? नहीं. By knocking on the window, call that child to hear you. He intent is all on his play business bent. कोई आप उस पुस्तक पढ़ते हुए बच्चे को कोई अगर पुकार भी रहा है तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है. इस समय वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब में खोया हुआ है. Not lured by out of this book, और कोई और अट्रैक्शन, कोई ल्यूर उसे इसके अलावा नहीं दिखाई दे रहा है. He has grown up and gone away and it is but a child of air that lingers in the garden there. और किताब पढ़कर वो उसकी मेमोरी में आ गया है. हमने अभी नया वर्ड पढ़ा, चाइल्ड ऑफ एयर, मेमोरी ओनली. और ये किताब उसकी मेमोरी में छप गई है और वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है. तो इसमें हमें राइटर क्या बताना चाहते हैं कि किताबों की दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग है. जो किताबों की दुनिया में खो गया, मस्त हो गया, व्यस्त हो गया, उसने दुनिया का सारा ज्ञान पा लिया और सबसे प्रिय मित्र को भी उसने उन बुक्स के रूप में, अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में पा लिया. We have gone through the Wordpedia, difficult words. Now what we have to do, what is our work is, we have to tick the correct option on page number 7. First you have to read aloud this poem twice or thrice, ताकि जो भी वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करने हैं वो आपको क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए. फिर आपको उनके वर्ड मीनिंग्स देखने हैं. Then you have to tick the correct options, but you have to write the options too. Then second is find out 4 pairs of rhyming words from the poem. पोएम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स दिए गए. राइमिंग वर्ड्स एज यू नो जो एक दूसरे से राइम करते हैं बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सीज एंड ट्रीज इज द फर्स्ट वर्ड. आई विल बी डूइंग दिस फॉर यू. देन आपको बाकी के 3 जो है खुद यहाँ से निकाल कर लिखने हैं. देन राइटिंग असाइनमेंट में रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. वी विल बी डूइंग इट टुगेदर. नेक्स्ट इज लैंग्वेज स्किल, जिसमें आपको चाइल्ड ऑफ एयर का मीनिंग अभी हमने पीछे पढ़ा, मेमोरी ओनली, जो हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में है. उसके 5 वर्ड्स हमें इस मेज में से ढूंढकर दिए गए कॉलम्स में लिखने हैं. फर्स्ट आई विल बी डूइंग फॉर यू रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज द फर्स्ट वर्ड. मिरर. रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट आर इन योर माइंड, व्हाट इज इन योर थॉट्स इज द रिफ्लेक्शन. सो आई हैव डन दिस वन फॉर यू. You have to do the remaining, and I'll be explaining countable and uncountable noun in the second class in the grammar section. So be prepared with the first chapter. Now we are done with the first chapter. You have to read the poem again and again, twice, thrice, जितनी भी बार आपको समझ में आए आपको करना है. और इसमें दिए गए oral assignments को भी आपको बुक में एटलीस्ट पेंसिल से करिए. Don't use pen in the books. यूज योर पेंसिल्स ओनली. एंड आपको डेट वाइज जिस दिन आपका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यू हैव टू राइट डाउन द डेट्स. बताने की जरूरत नहीं है, यू विल बी फेमिलियर विद दिस. ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हमने किस दिन क्या करा था. सो वी आर डन विद दिस. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.